ایڈمنسٹریشن کی گئی ہے صوبے کے اندر، کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ صوبے کے اندر یہ کوئی فیڈرل فورس کے ذریعے کارروائی کرے. کسی بھی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ ہم کوئی کارروائی کرنے دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وفاق کو ایک بار پھر للکار. فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری بنانا صوبائی معاملات میں مداخلت قرار. صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہ دینے اور عدالت جانے کا اعلان. افغانستان سے بات چیت میں صوبے کو شامل کرنے کا مطالبہ. بار بار کنفیوز کیا جاتا ہے، یہ فیڈرل پولیس بن رہی ہے، یہ اس طرح کا کوئی. سر یہ ایف سی will remain FC. طلال چودھری نے ایف سی کو فیڈرل پولیس بنائے جانے کی خبریں مسترد کر دیں. فورس میں بھرتیوں کا پرانا قبائلی نظام برقرار ہے. واضح کر دیا کہ آرڈیننس کے تحت ایف سی کے سروس اسٹرکچر کو بہتر بنا کر دیگر فورسز کے برابر لایا گیا. وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں امن و امان حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دی. تمام مکاتب فکر پر امن کے لیے کردار ادا کرنے پر زور. وزیر اعظم ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت قبائلی وفد سے ملاقات. شہباز شریف نے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں ضم شدہ اضلاع کا کوٹا بڑھانے کا اعلان کیا. امیر مقام کی سربراہی میں قائم دائرہ کار کمیٹی میں قبائلی عمائدین کو نمائندگی دینے کا فیصلہ. گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشیں، لینڈ سلائڈنگ اور موز اور ریلے خوف کی علامت. بابوسر ٹراپ کے ریلے میں بہنے والے لودھرا کے بچے کی لاش نکال لی گئی. اب تک ملنے والی لاشوں کی تعداد 6 ہو گئی. 9 افراد اب تک لاپتہ. ننکانہ کے 2 نوجوانوں کو تلاش نہیں کیا جا سکا. آج صبح تیز بارش سے سکارکوئی گاؤں میں ریلوں کی زد میں آ گیا. متاثرہ گاؤں تباہی اور بربادی کی داستان سنانے لگا. بابوسر ٹراپ ریلے میں بہنے والے دیور بھابھی کی میتیں لودھرا پہنچیں تو ہجوم امڈ آیا. فضا سوگوار، علاقہ مکینوں کی آنکھیں نم. نماز جنازہ کے بعد دونوں کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. ننھے ہادی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. لاہور میں ایک بار پھر موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، چنیوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے. خیبر پختونخوا کے علاقے چارسدہ، مردان اور ہری پور میں بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. خانپور میں لینڈ سلائڈنگ کے راستے بند ہو گئے. 24 گھنٹوں میں مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 14 ہو گئی. اسٹینڈرڈ اینڈ پور گلوبل نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر کے CCC سے B کر دی. زر مبادلہ کے ذخائر 20.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. مہنگائی کی شرح 4.5% اور شرح سود میں 1100 بیسس پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی. آئندہ سال معاشی ترقی کی شرح 3.6% متوقع. S&P گلوبل نے رپورٹ جاری کر دی. میکرو اکنامک اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سے بیرونی قرضہ جات کی ادائیگی کا دباؤ کم ہوگا. وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی کاوشوں کو قابل تعریف قرار دے دیا. ڈھاکہ میں ہوئی پاکستان کی جیت، بھارت کو شکست. متعصب دلی سرکار بنگلہ دیش میں ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس رکوانے اور ایشیا کپ منسوخ کروانے میں ناکام. محسن نقوی کے زیر صدارت ACC کے اجلاس میں شرکاء ستمبر میں ایونٹ کے انعقاد پر متفق. بھارتی بورڈ نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا. اجلاس کے بعد شرکاء نے خوشگوار موڈ میں گروپ فوٹو بھی بنوایا. چیئرمین PCB نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے ساتھ جلد سب کچھ حل ہونے کی نوید سنا دی. بھارتی کرکٹ بورڈ کے ساتھ بات چیت کے بعد جلد ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا. بڑے ایونٹ سے پہلے پاکستان، افغانستان اور UAE کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز دبئی میں ہوگی. ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس کے حوالے سے بھارتی بورڈ کے یو ٹرن اور اجلاس میں شرکت پر بھارتی میڈیا اپنے ہی بورڈ پر برس پڑا. ڈھاکہ میں ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس کو PCB اور محسن نقوی کی کامیابی اور بھارتی بورڈ کی ناکامی قرار.
अताउल्लाह तारड़ ने 9 मई के वाक़यात में पीटीआई रहनुमाओं को सजाए इंसाफ का तकाजा करार दे दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। बानी पीटीआई के बेटों का हक है कि वो मुहिम चलाएं, लेकिन अवाम को ये ज़रूर बताएं कि वालिद के खिलाफ सियासी नहीं बल्कि कोई करप्शन का केस है। वज़ीर इत्तलात का तंज़। लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली अहमद बच्चर साहब को, अहमद चट्ठा साहब को और बिलाल एजाज साहब को दीगर के हमरा 10-10 साल सजा सुनाई कि सिर्फ एक पार्टी का मेंबर होना जुर्म हो गया। आज आवाज बुलंद करना जुर्म है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का पाकिस्तान का 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पार्टी रहनुमाओं को 10 साल कैद का फैसला सुनाना ना इंसाफी है। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज होती तो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला ना आता। राजा नासिर अब्बास का इजहार ख्याल। अलीमा खान का एक बार फिर बानी को 22 घंटे तक सेल में रखे जाने का दावा। अखबार, किताबें, टीवी दस्तयाब नहीं। खातून रहनुमा ने जेल में साबिक वज़ीर आज़म के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखे जाने का इल्जाम आयद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई के 12 कारकुनान को 6 नवंबर एहतजाज केसेस में 6 माह कैद की सजाएं सुना दी। 11 को डिस्चार्ज कर दिया गया। शराब असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान एक बार फिर कलमबंद नहीं हो सका। एडवोकेट जनरल ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। समाज सितंबर तक के लिए मुलतवी। रावलपिंडी में पुलिस ने पंजाब के साबिक वजीर राजा बशारत को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाहर से हिरासत में ले लिया। लीगल टीम की जमानत के कागजात पेश करने पर तस्दीक के बाद राजा बशारत को छोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब सेनेटर्स रुबीना खालिद और तलहा महमूद ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 9 मुंतखब सेनेटर्स से उनके ओहदों का हलफ लिया। For the rights of the people of Jammu and Kashmir for self-determination and end to the prolonged illegally occupation by India. इसहाक डार का एक बार फिर सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म ने सलामती काउंसिल इजलास की सदारत पाकिस्तान के लिए 22 से एजाज करार दे दी। अफगानिस्तान का सिक्योरिटी खदशात पर मुस्बत रद्द अमल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा काबुल से बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जल्द अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्की। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। डॉलर की कीमत 270 रुपए तक वापस आने का इम्कान। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा नहीं होगा। आवाम से डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करने की अपील। चेयरमैन मलिक बोस्तान ने दावा किया कि अफगानिस्तान और ईरान में स्मगलिंग की वजह से हालिया दिनों में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। हुकूमत को $2000 कैश खरीदारी पर टैक्स न लगाने का मशवरा। आलमी सतह पर डॉलर कमजोर। सोना एक ही रोज में 5,900 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। सराफा बाजार में कीमत 3,59,000 रुपए। पाक अफगान तरजीही तिजारत का मुआहिदा। अफगानी अंगूर, अनार और सेब पर 26% ड्यूटी खत्म। टैक्स 53% से कम होकर 27% रह जाएगा। पाकिस्तानी आलू, केले, कीनो, राम पर अफगानिस्तान 20% कस्टम ड्यूटी कम कर देगा। 1 साल मुआहिदे का इत्तिलाक 1 अगस्त से होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खवातीन के बांझपन पर महर या नान और नफका से इनकार गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार साले मोहम्मद पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। शौहर ने बीवी पर बांझपन का इल्जाम आयद करके दूसरी शादी कर ली थी। खातून के तिब्बी मुआयने में शौहर के तमाम इल्जामात गलत साबित। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना अल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए।
कोयटा में खातून और मर्द के कत्ल केस में पेशरफ्त। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम शेयर करने पर पुलिस ने मकबूला बानो की वालिदा गुलजान को हिरासत में ले लिया। अदालत ने 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। तौहीन मजहब इल्जामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। आफिया सिद्दीकी केस में वजीर आजम को तौहीन अदालत नोटिस भेजने का मामला लटक गया। रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिस भेजने का मामला वक्ती तौर पर रोक दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जस्टिस एजाज के दफ्तर से 16 जुलाई को समाअत का नोट 21 जुलाई को आया। उनके नोट से पहले हफ्तावार रोस्टर जारी हो चुका था। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रोलॉजी के अस्पतालों का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स, इमरजेंसी, लेबर रूम्स और ओपीडीज का मुआयना। सिंध हुकूमत के सेहत के शुबे पर फोकस मिसाली करार दी थी। हाई कोर्ट ने एहतसाब ब्यूरो को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ तहकीकात से रोक दिया। नैब इम्तहानात की इंक्वायरी नहीं कर सकता, मार्कशीट्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात का कह दे तो क्या नैब तहकीकात शुरू कर देगा? अदालत का सवाल। वज़ीर आज़म और सदर को कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात में वक्त लगता है। नोटिस भेजा तो मुलज़िमान अदालत आ गए। तफ्तीशी अफसर का जवाब। अगले दिन पहले चालिया सेहत के लिए मौजू, अगले रोज चालिया मुसरे सेहत हो गई। पाकिस्तान साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल लाहौर के टेस्ट में रद्दोबदल का इंकशाफ। चेयरमैन पर टेस्ट बदलने का इल्जाम। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक लेबॉर्ट्रीज में टेस्टिंग की सहूलत बंद कर दी गई। बिजली सार्फिन के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की मुद्दत खत्म होने के करीब। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.55 फी यूनिट का रिलीफ इसी माह खत्म हो जाएगा। ₹4.51 फी यूनिट का रिलीफ जून में खत्म हो चुका। डोमेस्टिक फ़ज़ाई किरायों में 40% तक की कमी की खुशखबरी। चीनी मुसाफिर तैयारे पाकिस्तान में उड़ान भरने को तैयार। चीनी तैयारे एयरबस और बोइंग के मुकाबले में आधी कीमत पर मिलेंगे। नई एयरलाइन के चेयरमैन हनीफ गौहर की ब्रीफिंग। लाहौर मैट्रिक बोर्ड में सब्जी फरोश के बेटे ने 3री पोजीशन हासिल करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 1200 में से 1186 नंबर हासिल। फैसल ने कामयाबी माँ बाप के नाम कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर बोर्ड में साइंस ग्रुप में बॉयज़ में 3री पोजीशन हासिल की है। मैंने 1200 में से 1186 नंबर हासिल किए हैं। ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं, मेरे उस्ताद-ए किराम की रहनुमाई और मेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का धरना 5वें रोज में दाखिल। इदारे की बंदिश नामंजूर के नारे। निष्कारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। लियारी बिल्डिंग इन्हिदाम केस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 अफसरान की अबूरी जमानत की तौसीक। हादसे में 27 अमवात पर बिल्डिंग के मालिकान समेत 10 मुल्जिमान नामजद हैं। कराची में नीपा पुल पर रेस लगाने के दौरान मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जख्मी। स्वाबी में उस्ताद का 6 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मुल्जिमान की बरियत के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। बरी 12 मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में ट्रेन बम धमाकों के केस में 12 मुसलमान मुल्जिमान को बरी कर दिया था।
गजा में भूख और प्यास का डेरा, इंसानी बहरान किसी भी वक्त अलमी में बदलने का अंदेशा। खान यूनिस की सड़कों पर हुजूम, एक पतीली सूप लेने उमड़ आया। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 115 हो गईं। 24 घंटों के दौरान बमबारी से मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के मजलूमों से इजहार यकजहती का मुनफरिद अंदाज। मिस्री शहरी ने खुराक से भरी प्लास्टिक की बोतलें समुंदर की नजर कर दी। खुराक फ़लस्तीनी अवाम तक पहुंचने की दुआएं। थाईलैंड और कंबोडिया में सरहदी झड़पें, आम शहरियों समेत 12 अफराद जान से गए। धमाकों के बाद शहरियों के खौफ से भागने की वीडियोज वायरल। दोनों ममालिक ने अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया। रूस के यूक्रेनी शहर ओडेसा पर ड्रोन हमले, मारूफ प्राइवेट फूड मार्केट, रिहायशी इमारतें और शहर के तारीखी मरकज को नुकसान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का अपनी अहलिया को मर्द करार देने वाले इन्फ्लुएंसर के खिलाफ हतके इज्जत का दावा। पॉडकास्टर कैंडिस ओवेंस ने शादी, दोस्तों और खानदान को निशाना बनाया। निजी जिंदगी में मुदाखलत से आलमी सतह पर शर्मिंदगी और तकालीफ का सामना करना पड़ा। मैक्रोन और अहलिया की अदालत में दरख्वास्त। रेसलिंग के लेजेंड और WWE सुपरस्टार हल्क होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हल्क होगन 1977 में रेसलिंग की दुनिया में आए। मखसूस अंदाज की बदौलत आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल की। रिंग में आखिरी कदम जनवरी में रखा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को तीसरा T20 मैच 74 रन से शिकस्त। 179 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 104 रन पर ढेर। सलमान मिर्जा के 3 और फहीम अशरफ के 2 शिकार। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से मेजबान मुल्क के नाम। साबिक कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर नसीम शाह के दरमियान बारिश में स्लाइडिंग का मुकाबला। दोनों क्रिकेटर्स ने लाहौर में ठंडी के साथ बारिश का लुत्फ भी उठाया। यूएफा वुमेन यूरो के सेमीफाइनल में आखिरी लम्हात में गोल। स्पेन की टीम यूएफा वुमेन यूरो के फाइनल में पहुंच गई। जर्मनी को 1-0 से शिकस्त। टूर डी फ्रांस का 17वां मरहला इटली के जोनाथन मिलान ने जीत लिया। रेस के दौरान बारिश से कई साइकिल सवार फिसल गए। येलो जर्सी पर तादेश पोगाचार का बदस्तूर कब्जा। चीन के शहर बीजिंग में मछलियों की शनाख्त और हिफाजत के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल। वाइल्ड पार्क में जदीद निज़ाम नस्ब सिस्टम के जरिए आबी माहौल पर नजर रखी जा सकेगी।